ये 15 क्विंटल का जो सांभर बन रहा है, तो 15 क्विंटल का जो स्वीट बन रहा है, 15 क्विंटल का। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। मैं बीजापुर के ज्ञान योग आश्रम में आज मौजूद हूं। सिद्धेश्वर स्वामी जी की तबीयत कुछ दिनों से नासाज है और इसी को लेकर भक्तों की लाइन लगी हुई है। स्वामी जी बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे। स्वामी जी के जो भक्त हैं वो सिर्फ बीजापुर में नहीं, कर्नाटक में नहीं, इंडिया में नहीं, विदेशों में भी उनके भक्त हैं। उनके रूहानी तकारीर और उनकी सादगी से स्वामी जी मशहूर थे। स्वामी जी की तबीयत बिल्कुल नासाज है और इसी को लेकर नेता अभिनेता तमाम जो आकर दर्शन दे रहे हैं। और कल जो है कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्माई और दीगर मंत्रियां, एमएलएज, लीडर्स तमाम आकर स्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं। और कल विपक्ष नायक सिद्धरामैया जी भी आएंगे दर्शन के लिए। तो आज भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು। वैसे तो लाखों स्वामी जी के भक्त जो है आकर दर्शन कर रहे हैं और योग आश्रम में जो हम ठहरे हुए हैं, आइए उनके भक्तों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है और उनके भक्तों के ज़बानी स्वामी जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನಸಾಗರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸತತ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ನಿಂತರೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಶ್ರೀಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. तो स्वामी जी के एक झलक के लिए, स्वामी जी के एक दीदार के लिए, झलक के लिए लाखों भक्त जो है सुबह से यहाँ पर ठहरे हुए हैं और कई दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए हैं। स्वामी जी जो बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे और स्वामी जी कि हमेशा जो है सफ़ेद लिबास में रहते थे और स्वामी जी के जो लिबास था, उनका जो ड्रेस था, उसमें कभी जेब नहीं था। तो स्वामी जी यही कहना चाहते थे कि दुनिया की तरफ, दुनिया की हवस और लालच से दूर रहने की वो हमेशा प्रवचन में अपने भक्तों से कहते थे। और स्वामी जी जो नड़दाड़ू दौर, जो कन्नड़ में जिसे कहते हैं, यानी चलते फिरते भगवान थे। स्वामी जी के वचन सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में उनके भक्त इसी मंदिर में आते थे, मठ में आते थे। लेकिन आज जो है स्वामी जी के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो फिर से ठीक हों और उनके जो प्रवचन है, जो उनकी जो तकरीर है, वो सुनने के लिए, उनके चेहरे को देखने के लिए बेताब हैं। ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ಜನತೆ ಅವರನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಪೂಜ್ಯರು
ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಸುಮಾರು 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಮಹಾಜನತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಸರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ 4 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಗೆಟ್ಟ ಬರ್ತಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ಮುಂದಿನ ಲೈಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದವ್ರು 3 ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವ್ರಿ ನಾವು 2-3 ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿವ್ರಿ. ಅಪ್ಪಗಳು ಈಗ ಆರಾಮದಾರ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಈಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಆರಾಮದಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗೆ ಅದಾರ ರೀ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ರೀ. ಈಗಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ರೀ. ಈ ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. नहीं वो चिंता नहीं है, स्वामी जी की तबीयत में हेर फेर है, लेकिन सब हम दुआ कर रहे हैं कि जल्दी. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪಂಗಳವರು ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಜನ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾಡಿನ ಜನರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠ, ವಿಜಯಪುರ. तो हमने आश्रम में यहाँ पर पूरी तरह से जो है प्रोटोकॉल लगा हुआ है सरकार की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से, और दर्शन के लिए जो कुछ लोगों को, चंद लोगों को ही इजाज़त मिल रही है. फिर थोड़ी देर के बाद फिर चंद लोगों को इजाज़त मिल रही है. अब जो दर्शन करा रहे थे वो अभी बिल्कुल बंद हुआ है, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो है भक्त जो है यहाँ पर स्वामी जी की एक दर्शन के लिए तरस रहे हैं और निराश होकर वापस लौट रहे हैं. आप यहाँ पर आप देख सकते हैं. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. स्वामी जी का ये जो खाने का व्यवस्था यहाँ भक्तों के लिए किया जाता है. वैसे तो ये आश्रम में ये जो खाने की व्यवस्था है वो कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन 4-5 दिन से जो स्वामी जी की तबीयत में हेर फेर हुआ है, नासाज तबीयत हुई है, तब से लेकर भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है हज़ारों की तादाद में, यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूरे
हिंदुस्तान के कोने कोने से स्वामी जी के जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और उन तमाम के लिए जो यहाँ पर खाने की व्यवस्था मठ की तरफ से किया जा रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं। ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಪ್ಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೋಳ ಶಿಷ್ಯರದಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಪ್ಪೋಳ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪ ಶಿಷ್ಯರದಾರ. ಈಗ ನಾವು ಎಂದ ಬುದ್ಧಿಯವರು ಈಗ 21 ದಿವಸ ತನಕ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಹುತರ ಯಾವುದನ್ನು ಬಹುತರ ನಿರಾಭಾರಿ ಅಂದರೆ ಬಹುತರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜನ, ಈ ಭಾಗದ ಜನ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದೊಂದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಳು ಗುಮ್ಮಟ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವದ ಏನಾದರೂ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಗುಮ್ಮಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಭಾವ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತಂದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅವರೇ ಬರೋದು, ಅವರೇ ತರೋದು, ಅವರೇ ನೀಡೋದು, ಅವರೇ ಉಣಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೃಪಾ. ಅನೇಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಲಿ, ಭಕ್ತಗಳಾಗಲಿ, ಭಕ್ತ ವರ್ಗಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳೊಂಡಿಗೆ ಅಂತದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಗುಡ್ಡೋಡಿಗೆ ಅಂತದಾರೆ, ಆನಂತರ ಗಡಿಗೆ ಅಂತದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೆದದ. ಯೋಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ महाराष्ट्र कोल्हापुर। ये जो खाने का जो भंडार चला हुआ है और यहाँ के भक्त जो हैं तो इसको चलाते हैं। और स्वामी जी का एक आदेश भी था कि यहाँ से जो भी आता है वो भूखा नहीं जाए, तो इसलिए जो भी आता है वो यहाँ पर प्रसाद लेकर जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज 20,000 लोगों को आज यहाँ पर प्रसाद मिला है। और ये 15 क्विंटल का जो स्वीट बन रहा है, 15 क्विंटल का। और इसी तरह जो ये 15 क्विंटल का जो सांभर बन रहा है। तो स्वामी जी का ये कहना था कि यहाँ जो मठ को आता है, जो दर्शन के लिए आता है, वो कभी भूखा न जाए। ये इनका एक बहुत बड़ा आदेश था सर। ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರದಾರ್ರಿ. ಆನಂತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದಾನ ಅಂತರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾನ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ದಿನ 20,000 ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಗೆ ನಡೆದೈತ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ. ಕಮಿಟಿಯವರು ಅವ್ರವ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ಗಡಿಗೆ, ಶರಣು ಗುಡ್ಡೋಡಿಗೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಬ್ಬರು ರೀ. ಇವು ಈ ಥರ ನಮ್ಮದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀ. ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಬರ್ರಿ. ಬನ್ನಿ
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು तो स्वामी जी के मठ में हमें जब पहुँचे हैं तो भक्तों की यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है, लेकिन भक्तों को जो है पहले गेट पर ही रोका जा रहा है, क्योंकि स्वामी जी पर चलना हो तो मेन गेट से आधा किलोमीटर दूरी पर स्वामी जी का स्थान है। तो स्वामी जी के दर्शन के लिए अभी कुछ लोग देखे हैं और उन्हें वापस हैं, और जो उनके जो सिक्योरिटी रीज़न के लिए, उनकी तबीयत के लिए जो है कल सुबह 7 बजे का टाइम भक्तों को उन्होंने दिया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बी न्यूज़ नेशन के CMD शकील बागमारे सर, आपने भी देखा कि स्वामी जी एक बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे, और उन्होंने जो है अवार्ड भी वापस किया, जो कि मोदी जी को पद्म भूषण अवार्ड, जो मोदी जी को चिट्ठी लिखकर अपना अवार्ड भी वापस दिया, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इतनी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने वाले स्वामी जी, जो आज उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज है और भक्तों में नाराज़गी नज़र आ रही है। दर्शन करने के लिए भक्त जो है डटे हुए हैं, तो आप क्या कहें? स्वामी जी के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये हमारे बीजापुर वालों के लिए ये समझिए कि भाग्य है कि स्वामी जी हमारे बीजापुर शहर के हैं। स्वामी जी के बारे में कहा जाता है चलते फिरते भगवान इन्हें माना जाता है, और इनकी इस तरह से लोग पूजा करते हैं। तो ये सिर्फ हमारे बीजापुर तक ही नहीं, बल्कि कर्नाटक ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे इंडिया में ये काफ़ी मशहूर हैं। और इनकी एक अहम खासियत ये है कि इनके शरीर में जो कपड़े होते हैं, जो अब हमारे शरीर में जो कपड़े हैं, हमारे यहाँ पे जेब हैं, उनके कपड़ों में जेब नहीं है। उनका मानना है कि ये जो दुनियाई जो दिखावा है, जो दौलत की आस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रखी, और वो यही चाहते थे कि जिस तरह भगवान ने उन्हें पैदा किया है वो उसी तरह रहें, लोगों की मदद करते रहें। जैसे कि आपने कहा कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड से जब उनका नाम आया तो उन्होंने खास करके मोदी जी को एक लेटर लिख के ये सूचना दी कि मैं एक संत हूँ, मेरा काम समाज सेवा करना है, मुझे किसी तरह का टाइटल, मुझे किसी तरह का नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति पद्मश्री अवार्ड को ठुकरा सकता है तो व्यक्ति कितना महान होगा। ये हमारे बीजापुर वालों के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि हमें स्वामी जी हमें मिले, जो इतने महान स्वामी जी हैं, जिनके भक्त आज सिर्फ बीजापुर में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। आज भक्तों की एक भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। जैसे कि हमने अंदर जाकर जब बात किया, आपने बात किया, तो पता चला कि रोज़ाना 15 से 20 हज़ार लोग स्वामी जी के दीदार के लिए आ रहे हैं, और सभी रो के स्वामी जी की तबीयत जो अब ख़राब खस्ता हाल में चल रही है उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि स्वामी जी जल्द से जल्द ठीक होए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि स्वामी जी की सेहत जल्द से जल्द अच्छी हो। मगर कुछ लोग ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि स्वामी जी अब नहीं रहे, तो मैं उनसे कहूँगा कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाइए कि स्वामी जी के बारे में कुछ भी वायरल फ़ोटोज़ भाग कर रहे हैं, तो इस तरह से फेक न्यूज़ ना करें। हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं, स्वामी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब वक्त वो बड़े आराम हैं, मगर ऑक्सीजन पर उन्हें रखा गया है। मगर जो भी अफवाहें चल रहे हैं वो दरअसल गलत हैं। हम यही चाहते हैं कि उनकी सेहत में जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो। शुक्रिया बहुत बहुत। तो अभी आपने देखा कि पूरे मठ का जो हमने जायज़ा लिया, यहाँ पर अन्न प्रसाद जो है हज़ारों की तादाद में आकर लोग खा रहे हैं, और उनका स्वामी जी का एक आदेश भी था कि कोई मठ से भूखा न जाए।
और स्वामी जी की तबीयत में अब सुधार आ रहा है, तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि स्वामी जी जल्द से जल्द ठीक हों और उनका प्रवचन जो उनकी रूहानी बातें हैं वो भक्त और सुने और उससे फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। महाराजा स्वीट मार्ट मीठे, नमकीन और चटपटे स्वादिष्ट वैरायटीज के साथ बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी, खासकर न्यू ईयर के लिए तैयार हर तरह के केक आपके मन पसंद डिजाइन के साथ आज ही विजिट करें महाराजा स्वीट, नियर बस स्टैंड, अपोजिट ललित महल, बीजापुर।